Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I will come to you all in Shri Ram Public School online classes. As you know, till now we have completed up to the distinguish between the primary capital market and the money market. Now today we are going to see the types of the capital market. In that, first one is your primary market. So be ready with the topic. Let's go to the primary market. The first part of your capital market, first type is your primary, and that is next one is your secondary. So we are going to see today the primary market. Primary market is also known as the new issue market because here first time securities are issued by the company, right? Or we can say the new company issued the first time security, or existing company issue the new security. A deal with a new security being issued for the first time, the essential function of the primary market is to facilitate the transfer of the investable fund from saver to entrepreneur. यहाँ पे पैसा डायरेक्ट पब्लिक का कंपनी में जाता है, ना कि किसी to entrepreneur seeking to establish the new enterprise or to expand existing ones through the issue of the securities for the first time. The investors in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. Okay, a company can raise the capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, डिबेंचर, लोन्स एंड डिपॉजिट. सिंपल मीनिंग में एक ही याद रखिएगा, प्राइमरी मार्केट में जो नई कंपनी होती है वो लोग जो भी सिक्योरिटी इशू करना होता है फर्स्ट टाइम वो प्राइमरी मार्केट में करते हैं. दूसरी चीज़, जो पुरानी कंपनी भी है, ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी है जैसे डिबेंचर हो गया, शेयर्स हो गया, ऐसी कोई सिक्योरिटी है जिसके थ्रू पैसा पहले कभी नहीं मंगाया है, फर्स्ट टाइम वो उस सिक्योरिटी को यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो भी अपना फ्रेश इश्यू इसी मार्केट से करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट. A company can raise the capital through the primary market in the form of the equity share, debenture, preference, loan, deposit, etc. The fundraise may be setting up a new project, expansion, diversification, modernization of existing project, merger, takeover, etc. ये सारे उसके रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों अपना पैसा प्राइमरी मार्केट से मंगा रहे हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द प्राइमरी मार्केट, सॉरी मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द प्राइमरी मार्केट. फर्स्ट वन, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस यानी क्या होता है पता है, आपने मेन्यू कार्ड का नाम सुना होगा, राइट? उसमें क्या होता है, कंपनी का नाम जो भी है और उसके यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस या गुड्स अवेलेबल है. ठीक वैसे ही प्रोस्पेक्टस ना एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी का हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें लिखी होती है. कंपनी का एड्रेस, उसके एजेंडा, उसके फ्यूचर गोल, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें. ठीक है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस इज़ द मोस्ट पॉपुलर method of raising the fund by public company in the primary market. This involve inviting subscription from the public through the issue of prospectus. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस यानी एक इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं जिसके थ्रू वो पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं. अब जब पब्लिक कंपनी के बारे में हिस्ट्री, जोग्राफी सब कुछ समझ लेगी तो ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगी, है ना. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं और उसी के साथ है ना एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाता है कि मान लीजिए अगर पब्लिक इंटरेस्टेड हो प्रोस्पेक्टस देखने के बाद तो वो एप्लीकेशन भर दे. A prospectus make the direct appeal to investor to raise the capital through an advertisement in a newspaper and magazine. अब ये जो प्रोस्पेक्टस हैं वो न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू इशू किए जाते हैं इन जनरल पब्लिक. The issue may be underwritten and also are required to listed on at least one stock exchange. और आपको पता है जब भी आप इशू करने जाओगे तो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी को आपको लिस्टिंग कराना पड़ता है किसी एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, पहला. दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप अपने सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली इश्यू करवाइए थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कंपनी डायरेक्ट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट करे, तो वो क्या करते हैं, किसी अंडर रिटन को अपॉइंट करते हैं. अभी ये जो अंडर रिटर्न्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये गारंटी लेते हैं इस बात की कि जितना भी आप फ्रेश इशू कर रहे हो XYZ नंबर्स, वो सारे के सारे हम सेल करवा देंगे. इनकेस अगर नहीं हो पाए तो वो हम खुद खरीद लेंगे. सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एजेंट ब्रोकर्स की तरह काम करते हैं.
ठीक है। लेकिन उनमें इनमें एक ही फ़र्क होता है कि एजेंट ब्रोकर जो है वो सेल आउट कराने की गारंटी लेते हैं, लेकिन अगर सेल नहीं हो पाए तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन जो अंडर रिटर्न होते हैं ये लोग सेल करने की गारंटी भी लेते हैं, बट इनकेस अगर सेल नहीं हुआ तो बचा हुआ सारा का सारा शेयर्स ये लोग खुद खरीद लेते हैं अपने नाम से, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैव टू बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस में जो भी कंटेंट आप डालते हो अपनी कंपनी के बारे में वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए जो सेबी के डिस्क्लोजर में हो, ठीक है, जो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हो। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। एक बार आपने प्रोस्पेक्टस दिया, उसी के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी चला गया। अब आप क्या कर रहे हैं, सेल ऑफर कर रहे हैं। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू द इंटरमीडियरी लाइक इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर। ऑफर फॉर सेल यानी कि अब आप सिक्योरिटीज़ बेचने जा रहे हो, तो आप क्या डायरेक्ट बेचोगे या किसी इंटरमीडियरी को यूज़ करोगे, लाइक स्टॉक ब्रोकर, एजेंट एक्सेट्रा। In this case, the company sell the security en bloc at an agreed price to broker who in turn resell them to investing public, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ब्रोकर को एक फिक्स रेट पे सेल कर देते हैं, उसके ब्रोकर पब्लिक को इशू करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अ प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी बाय अ कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कंपनी प्राइवेटली पैसा मंगवाती है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इट हेल्प्स टू रेज द कैपिटल मोर क्विकली देन द पब्लिक इश्यू। एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव ऑन अकाउंट ऑफ द वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंस। सम ऑफ द कंपनीज देयरफॉर कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इश्यू एंड चूज टू यूज द प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अब पब्लिक इशू में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट इशू करना, अलॉटमेंट प्रोसीजर करना, कॉल मनी प्रोसीजर करना और भी बहुत सारे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ये सारे थोड़े कम होते हैं प्रोसीजर, इसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट इशू। दिस इज़ द प्रिविलेजेस गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो ये कि राइट इशू है क्या। जब कंपनी को एडिशनल पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, राइट इशू कर देते हैं। अब ये राइट इशू क्या है, ये एक टाइप का इक्विटी शेयर्स कैपिटल ही है, जो कंपनी कब देती, जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन ये शेयर्स मार्केट में इशू करने से पहले जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑफर करना पड़ता है, क्योंकि ये सेबी ने मैंडेटरी किया है। अब अगर पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर होने चाहिए, ठीक है, पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, वो शेयर्स कैपिटल खरीदते हैं, पैसा सब्सक्राइब करते हैं, तो ठीक है। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद राइट इशू को भी जनरल पब्लिक में दिया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी, the shareholders are offered the right to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess। यानी अगर पुराने ही शेयर होल्डर खरीदना चाहे तो क्या कोई कितना भी ले सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। जितना परसेंटेज उनका शेयर होल्डिंग है उतने परसेंटेज का एक रेशियो निकाला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है EIPO। EIPO का मतलब क्या है, देखिए, A company proposing to issue the capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into the agreement with the stock exchange. This is called initial public offer। Initial public offer का मतलब होता है first time public offer, ठीक है। SEBI registered the brokers have to be appointed for the purpose of accepting the applications and placing the order with the company. The issuer's company should also appoint a registrar to the issue having electronic connectivity with the exchange. The issuer company can apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities. The lead manager coordinates all the activity among the intermediaries connected with the issue। यानी यहाँ पे क्या होता है, अब राइट इशू जो अब IPO जो है, पहले तो IPO ना फिजिकल फॉर्म सर्टिफिकेट में ही पहले इशू किया जाता था, लेकिन अब इसको भी क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में ही इशू करती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज हम एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेकेंडरी मार्केट हम कल के लेक्चर में करेंगे। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, टेक केयर।